اگر آپ بھی کہیں پر جاب کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کا واسطہ کسی ایسی باس سے پڑتا ہوگا جو ایک خاتون باس ہوں گی. تو آج ہم نے اس بارے میں بات کریں. آپ کا پڑا ہے واسطہ؟ اچھا میرا سوال تھا، عائشہ نے میرے سے پوچھ لیا. آپ بتائیں پہلے. نہیں، میرا واسطہ نہیں پڑا ابھی تک نہیں. کیونکہ خواتین کو اپرچونٹیز بڑی کم ملتی ہیں کہ اس لیول پر آ کر وہ کام کریں اور اپنے سکلز کو دکھائیں، لیکن جن خواتین کو باصلاحیت خواتین کو یہ موقع ملتا ہے وہ کر کے بھی دکھا رہی ہوتی ہیں. تو آج ہم نے اسی پر بات کرتی ہیں فیمیل باسز جو ہیں. آپ جاننا چاہ رہی ہیں فیمیل باسز کیسی ہوتی ہیں؟ آسان الفاظ میں یہ جاننا چاہیں بھائی آپ کی اگر فیمیل باس ہیں تو وہ کیسی ہیں؟ آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. کوشش کریے گا اپنا نام اناؤنس نہ کریں، ہم بھی آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کا نام کیا، لیکن اپنے دل کی بات آپ ہمیں کال کر کے کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ابھی جب آپ کام کر رہے ہیں ہم اپنے لیے مسئلہ بنا لیں. اچھا چلیں، اگر بتانا ہے تو بتا دیجیے گا، نم کی بھی مان لیتے ہیں. یہ دونوں منصب جو ہیں کسی کو ملیں گے، کیسے ملیں گے، ان کا رویہ کیسا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ امپلائی کیسے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کا لیڈر کیسا ہے. اور اگر خاتون باس ہے تو وہ اچھی باس ہے یا نہیں باس ہے. اور یہ بڑی نا ڈسکشن چلتی رہتی ہے کہ بھائی تمہارا فیمیل باس ہے یا میل باس ہے، کون سا اچھا باس ہوگا. اچھا جی، جب سے دنیا بھر میں خواتین نے اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر اداروں کی سربراہی سنبھالی ہے تو دفتر کا ماحول ہو گیا، ملازمین کے مسائل ہو گئے، ان کے اندر ایک نیا رنگ بھی آیا ہے. کچھ تجربات اور سرویز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خواتین باسز زیادہ محنتی ہوتی ہیں، فوکسڈ ہوتی ہیں، اصول پسند ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اپنی جنس کے ملازمین کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھ پاتی ہیں. Now I don't know about this. نہیں، اس طرح کی چیزیں میں نے خود ایکسپیرینس تو نہیں کی لیکن لوگوں سے سنی ہے. وہ یہ والی بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ہی جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا نرم لہجے میں بات نہیں کری ہوتی ہیں. I don't know اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ میں نے بھی کسی خاتون سے ان کے انڈر اس طرح سے کام نہیں کیا. کوئی خاتون باس میری نہیں رہی ہیں. اچھا، we have to be very very careful کیونکہ ہمارے ساتھ ایک خاتون باس بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ہم خود خواتین ہیں، ہم باس نہیں ہے نا، خاتون باس ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تو ہم ذرا یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی میل یا فیمیل ہونا آپ کو اچھا باس بناتا ہے یا پھر آپ کی پرسنالٹی آپ کو ایک اچھا باس بناتی ہے. ایک چیز جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی خاتون باس آتی ہے نا تو ہمارے پری ڈٹرمنڈ ان کے بارے میں پرسیپشنز ہوتے ہیں کہ خاتون ہے، اوہو اس کے یہ مسئلے ہوں گے، یہ مسئلے ہوں گے، یہ مسئلے ہوں گے، یہ رویہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا پھر دفتر کا ماحول جو ہے وہ خاتون باس کے ہونے سے اچھا ہوتا ہے، میل باس کے ہونے سے اچھا ہوتا ہے. یہ سب کچھ آج ہم نے جاننا ہے. ہمارے ساتھ کال بھی کر سکتے ہیں آپ، بتائیں دو پرٹیننٹ گیسٹ موجود ہوں گے، ان میں سے ایک نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان کا میں انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. روہما لبیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنٹری ڈائریکٹر پاکستان ہیں ایکسلریٹ پراسپیرٹی کی، اور دوسرے جو بھی گیسٹ آئیں گے ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. لیکن ویلکم کرتے ہیں روہما کو. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارا انٹرو سنا، ہماری باتیں سنی، اگری کرتی ہیں آپ؟ I think بہت ساری چیزیں اس میں that need to be broken down. First of all, I'm hoping کہ میری کوئی ٹیم ممبر یا میرے کوئی ٹیم سے کوئی کال نہیں کر رہا ہو anonymously, then آپ لوگ کو سب کچھ سامنے آ جائے گا. No, you can call. اگر آپ کوئی شکایت کرنا چاہتے ہیں روما کی، آپ اپنے باس کے بارے میں کوئی بات کرنی تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. جی نہیں، but I think there's a lot of both truth and a lot of things جو depend کرتی ہیں I think individual پہ بھی. And as we go along, I think there's going to be a lot of topics or پرسنالٹی ٹریٹس جو مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول میں ہونی ضروری ہے، نہ کہ ایک فیمیل یا میل ورسز میں ہوتی ہے. کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں فیمیل باسز آر ناٹ the most amazing bosses, right? تو ہم ایسے I think ایک generalize نہیں کر سکتے in any way. لیکن definitely there's some traits. Emotional intelligence ایک بہت بڑا trait ہے جو مجھے لگتا ہے as a fact actually کہ females میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ automatically آپ کی leadership میں بھی آتا ہے. But we can go into more detail. اچھا، لوگ اس چیز کو پھر misjudge بھی تو کر لیتے ہیں نا. if a female boss is a little bit you know soft ہے، وہ understand بھی کر رہی ہے آپ کی problem کو کہ آپ اگر vulnerable ہیں تو وہ آپ کو you know کسی طرح سے اپنی چھتر چھایا کے اندر نا محفوظ کر لے گی، تو لوگ اس چیز کو نا آپ کی کمزوری بھی سم ٹائمز ویکنس بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز سے کیسے کوپ اپ کیا جائے؟ کیا واقعی میں وہ ویکنس ہے ایک فیمیل باس کی؟ نہیں، آئی تھنک یہ ایمپیتھی ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک ایمپیتھی ایک لیڈر کے لیے از اے ویری بگ اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، وہ آئی تھنک از دا کور اسٹرینتھ جو ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک لیڈر اور مینیجر یا کوئی بھی انڈیویجول اس نے اپنی آرگنائزیشن کو بھی چلانا ہے. وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے کسی گورننس کے لیے یا کوئی نہ کوئی KPIs میٹ کرنے کے لیے، کوئی ٹارگیٹس میٹ کرنے کے لیے، اپنی آرگنائزیشن کو سکسیزفل کرنے کے لیے. تو اگر آپ وہ بیلنس مینٹین نہیں کریں گے نا، انفارچونیٹلی لوگ ایڈوانٹیج بھی اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح بات. اچھا، فیمیل باسز کیا بہتر رویوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ خود ایک خاتون ہے، اور کوئی خاتون امپلائی اگر اس کے ساتھ
काम कर रही है तो उसकी इमोशनली वो कैसा फील कर रही होगी, कौन सी सिचुएशन में होगी, आपको लगता है कि वो खातून होने के नाते बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकती है, वो समझा पा रही होगी? बिल्कुल, आई थिंक ये तो एक ह्यूमन साइकी है कि एक खातून ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एक दूसरी खातून से बहुत सारी चीज़ें शेयर करने में. तो आई थिंक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वीव हैड दिस सिचुएशन, लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मदर्स ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं काम करने के लिए विद फीमेल बॉसेस. आई थिंक दिस इज़ अ फैक्ट. लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में भी, अपने करियर जर्नी में भी बहुत सारे ऐसे बॉसेस देखे हैं जो फीमेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं. मेरे अपने बॉस ऐसे हैं, यू नो, ही इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं. तो आई थिंक एक दोनों तरफ से आप हो जब सकता बात है. कर रही हैं ना तो शिकायतें आना शुरू हो चुकी हैं. लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, अली की तरफ चलते हैं. इस्लामाबाद से उनकी कॉल है. अली, आप बताइएगा, अच्छी बॉस हैं आपकी, बुरी बॉस हैं, कैसा तजुर्बा है आपका? कोई फीमेल बॉस रही है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? इस्लाम। जबरदस्त, आप कैसे हैं? अच्छा, मैं ठीक ठाक हूँ. इत्तेफाक से मेरी आज से काफी अर्से पहले की बात है, ये मेरा 5-6 इदारा है. तो मेरी पहली बॉस फीमेल थी. शी वॉज वेरी कंपैशनेट और बहुत ज़्यादा. अच्छा, मैंने जो चीज़ उनके अंदर देखी वो ये था कि शी वॉज बेसिकली उनकी ब्रॉटअप जो है ना अमेरिका में हो चुका था. शी केम टू पाकिस्तान और उन्होंने हमें हेड किया. तो ये था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. जो भी टास्क और टारगेट दे रहे हो उसको अचीव करने के लिए आप कम्युनिकेशन गैप्स को रखेंगे तो उससे हर्डल्स क्रिएट होंगे और उसमें डेफिनेटली एक डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, आपका बॉस आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है या कर रही है तो वो मैटर करता है. तो ये कॉन्सेप्ट जो है लेजिस्लेरियन थ्योरी है. तो अगर आप डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी करते हो तो इसी सूरत में एक खातून बॉस बहुत ही अच्छी बॉस कहलाएंगी. चलें, दैट्स ग्रेट. आपका एक्सपीरियंस अच्छा तजर्बा शेयर कर रहे हैं. अच्छा रहा है. खालिद भी हमारे साथ हैं. जी खालिद, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट मेरे कैरियर के आगाज में ही 2 खवातीन बॉसेस से वास्ता पड़ा मेरा. वाह. और एक पाकिस्तानी थी, दूसरी अमेरिकन खातून थी. वो एज ए कंसल्टेंट एक प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी. जनरली आई फाउंड देम वेरी गुड, यू नो, सिंपैथेटिक. उनका एटीट्यूड होता था मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से. लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी ज़रूर रही. मैं रेफरेंस दूंगा प्रेसिडेंट निक्सन का, तो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि women as a boss likes to be behave like a male boss. लेकिन वो ये चाहती हैं कि in respond they should be treated as a woman. ये एक परसेप्शन है और इस परसेप्शन में मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में काफी हद तक सच्चाई भी पाई जाती है. चलें, हमारे साथ एक फीमेल बॉस भी हैं, उनसे आपकी इस बात का जवाब भी लेंगे. वो क्या सोचती हैं? रोमा, आप सुनती रहिए, आपकी टीम से भी कोई हो सकता है. एक और कॉलर है हमारे साथ, अब्दुल अनान, उनसे भी जरा सुन लेते हैं. हासिलपुर से हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. देन हमारे अगले जो गेस्ट है ना उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया, उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ. जी अब्दुल अनान. जी अस्सलाम वालेकुम एंड आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक. मेरा कुछ सॉरी गला खराब हो गया आपसे बात करते करते. असल में खवातीन का डर होना चाहिए इंसान के अंदर. तो खवातीन जैसी जात ही कोई नहीं. मैं ये कहता हूँ कि इतनी कंपेटिबल और इतनी परफेक्ट माशाल्लाह. और एक बात मैं आपके सामने रखता चलूँ अनम एंड आयशा, जो खातून बॉस होती हैं और जो मेल बॉस के अंदर एक डिफरेंस ये है कि मेल बॉस ने देखना है जी आइए बताइए और चले जाइए. जो खातून होती है उसने कहना है हाँ जी कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आना है, लाइए दिखाइए, वो कहाँ है, ये कहाँ है. तो इतना डीपली खातून देख के मामलात को टैकल कर सकती है. और मैं चूंकि खातून बॉस के साथ मेरी भी जिम्मेदारी रह चुकी है, मैं खुद जॉब करता हूं, तो जो उन्होंने उस चीज को टेकअप करना ना वो मेल कभी भी नहीं कर सकता. मेल ने कहना हाँ जी मैं जी ये कर दूंगा, बस ऐसे हो जाएगा बस. तो जो उसका ग्राफ होता है काम करने का वो उतनी सुस्त रवि से वो आगे लेके जाता है जितनी वो. आप कह रहे हैं कि जितना डीपली एक खातून बॉस देख सकती है चीजों को उतना शायद डेप्थ में जाकर कोई मेल बॉस नहीं देख सका. बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान, आप हमारे साथ मौजूद थे. जो हमारे तीनों कॉलर्स थे उन सबकी तकरीबन एक जैसी राय जो है उनको सुन के ना मेरा भी दिल करने लगा. हमारा बॉस भी, मेरी बॉस जो है ना वो भी फीमेल होनी चाहिए. क्या मतलब आप रिप्लेस करना चाह रही हैं? मैं किसी को रिप्लेस नहीं करने जा रही हूँ. हमारे बहुत सारे बॉसेस हैं, एक नई आ जाएंगी तो कोई मसला नहीं.
हैं। उमैर जरियावाला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माजरत में लेट हो गया। लेट हो गया, कोई मसला नहीं, आपको चाय शाय पिलाए? ठीक जी, आई गॉट माय ओन। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन या आपका क्या एक्सपीरियंस है खवातीन बॉसेस को लेकर? मुझे तो हमेशा फीमेल बॉसेस मिली and अच्छा। I've had a great time. I think they changed me as a leader. फीमेल बॉसेस मिलना आपको तब्दील कर देती हैं एज अ मेल लीडर, क्योंकि अगर वो ना मिली हो तो आप वही कम्पिटिटिव, ईगो ड्रिवन, जिस तरह मर्द अपनी टीमें बनाते हैं, उसमें मुकाबले कराते हैं, फिर किसी की किट लगाते हैं, एक जिस तरह बॉयज़ कॉलेज माहौल होता है. सो दैट्स मेन, एंड मेन आर लाइक दैट इवन इन द सिलिकॉन वैली. तो वो तब्दील नहीं होते, लेकिन जहाँ ख़वातीन आ जाएँ वहाँ टेबल तब्दील हो जाती है. डिसिप्लिन आ जाता है थोड़ा सा. नहीं, ज़रूरी नहीं. अच्छा, एट टाइम्स डिसिप्लिन आउट भी हो सकता है, ये पर्सनैलिटी की बात है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि होलिस्टिक हो जाती हैं. आपके कॉलीग्स एलिवेटर में कह रहे थे कि दिमाग की बहुत दही करती हैं और आप भी यही बात सो वो उसका मतलब ये है कि बहुत सारी और बातें आ जाती हैं. मैंने कभी किसी फीमेल बॉस के साथ काम नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा कोई अपना तजुर्बा नहीं बता सकती. लेकिन हाँ, राइट नाउ जो हमारी प्रेसिडेंट है, शी इज़ अ फीमेल एंड शी इज़ एन अमेजिंग फीमेल प्रेसिडेंट. सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, हम सब उनको जानते हैं. उनके साथ काम करने का तजुर्बा बहुत अच्छा है, बट वो अल्टीमेट हमारी वो डायरेक्ट बॉस नहीं है, इमीडिएट बॉस नहीं है, तो मैं ओपिनियन नहीं अपना दे सकती हूँ. मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उमैर ये बताएं, कौन कौन से पॉइंट्स आपने नोट किए जिसने आपको एज अ एक बेहतर लीडर बनाया ख़वातीन बॉस के होने के बाद? आई थिंक एक तो आप होलिस्टिक हो जाते हैं. आप बंदा पूरा देखते हैं, आप सिर्फ उसका काम नहीं देख रहे होते हैं. जैसे ना कि कहाँ से आ रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या करना चाहता है. आपका लेंस बहुत डेवलपमेंटल होता है. ख़वातीन जिस तरह यहूदी ट्रेडिशन में है ना कि हर वक्त स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती हैं, उन्हें इबादत भी नहीं करनी पड़ती, यानी आप वर्कर की बजाय इंसान के तौर पर देखना शुरू आप जिंदगी फॉस्टर करती है ना, तो आप बच्चे से बड़ा करती हैं. एक कुछ नहीं से बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, तो एक माँ उसके करीब होती है, बाप उसके करीब नहीं होता. सो एक फीमेल बॉस में मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी बॉसेस के अंदर, कि वो देख सकती है कि अच्छा अभी इसने सीखना है, अभी आगे मराहिल क्या है, इसको क्या माहौल देने की ज़रूरत है. जहाँ मर्द बॉस चैलेंज करता है कि तू कर, वहाँ खातून बॉस जिस तरह एक माँ रास्ता बिछाती है, रास्ता खोलती है. यही तो डेफिनेशन नहीं है लीडर की. लीडर जो है वो रास्ता बनाता भी है और फिर दिखाता भी है. आज के दौर में देखें ना, जेन जी तो बहुत ज़्यादा अलाइंड है फीमेल बॉसेस के स्टाइल से. जेन जी नहीं अलाइन करती ट्रेडिशनल मेल बॉस के स्टाइल से. वो चाहती है ज़्यादा ट्रेंड है. आई डोंट नो, मैं आप एग्री करती हैं? ख़वातीन ज़्यादा ट्रेंड है क्योंकि वो घर पे भी बॉस ही होती हैं. आप किसी भी मर्द से पूछ ले, आप भी बेहतर इस बारे में बता सकते हैं. जी, वो लतीफ़ों में ज़्यादा मशहूर है वैसे. अच्छा, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है. अच्छा रोमा, जो हमारे कॉलर्स ने जो बातें की, एक तो आप उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें, और उमैर जो बात कर रहे हैं उसको आप किस तरह से देखें? बिल्कुल. एक तो तीनों कॉलर्स वर मेल टॉकिंग अबाउट इट लाइक दिस. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारी सोसाइटी में जो अब हो गई है, क्योंकि पहले कभी यू कुडंट इवन इमेजिन कि फीमेल बॉसेस के बारे में ऐसे लोग बात करेंगे. लेकिन आई थिंक एक कॉलर ने जो एक बात की कि वो ट्राई करती हैं टू बी लाइक मेल, रेफरेंस जो उन्होंने दिया था. बिल्कुल, बट दे वांट टू एक्ट एज मेल बॉसेस. आई थिंक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिस तरह यहाँ सोसाइटी है, जिस तरह काम करने का कल्चर है, इट फोर्सेस यू टू बी पार्ट ऑफ दैट कल्चर. आपको करना पड़ता है सम टाइम्स टू इंश्योर कि आप एक वो बैलेंस लेके आ रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो बहुत सारे आजकल जेन जी तो हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग आई डोंट थिंक हमारी सोसाइटी में रेडी हैं, या वो उस तरह सोचते हैं कि हम आसानी से चीज़ें इस लीडरशिप स्टाइल के साथ कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली दे नीड समथिंग. इतनी कम हमारे पास विमेन लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतनी कम विमेन लीडर्स हैं. उसका रीज़न आपको रोमा क्या लगता है कि क्यों उस पोजीशन तक नहीं पहुंचने दिया जाता ख़वातीन को, जहाँ पे वो ज़्यादा अपने बेहतर तरीके से इम्पैक्टफुल डिसीजन कर सकें और एक जो परसेप्शन बना हुआ है उसको चेंज कर सकें? बिल्कुल. आई थिंक अब चेंज हो रहा है वैसे, लेकिन आई थिंक ट्रेडिशनली जो है हमेशा, क्योंकि औरतों की पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा एक हैवी चीज़ होती है. ठीक है, आई एम अ मदर माई सेल्फ. बहुत ही मुश्किल होता है जब आपको बहुत सारी चीज़ें जगल करनी पड़ती है साथ ही. एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहें, मेल्स के पास वो एक फोकस हो सकता है जो वुमेन के पास नहीं हो सकता. इसमें तब्दीली नहीं आ रही है? इसमें आ रही है, पॉलिसीज चेंज हो रही है. मुस्कुरा रहे हैं उमैर, मैं आती हूं आपकी तरफ. लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत चेंज हो रही हैं.
सबसे ज़्यादा तो आई थिंक पेरेंट्स, थोड़ी सी तारीफ हो जाए मर्दों की फिर जो कभी husband किसी होते हैं मॉर्निंग वो शो पे किसी मर्दों की तारीफ हो जाए. I definitely think so. आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स जस्ट अ रियलिटी, राइट? आपको करना पड़ता है. जब इतनी सारी चीज़ें आप जगल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ जाती है, एक पेशेंस आ जाती है, जो आई थिंक एक अच्छी स्किल है एज अ लीडर के होनी चाहिए. बट आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स, एंड मैं फिर से जनरलाइज नहीं करूँगी, कुछ फीमेल्स होती हैं जो बहुत ट्रेडिशनली भी काम करती हैं, लेकिन जनरली देयर आर लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग. राइट. हमारे साथ एक और कॉलर टू नो, मैं ये पॉइंट लेके उसके बाद कॉलेज चले जाते हैं कि क्या लीडरशिप जो है वो खवातीन से सॉफ्टनेस को खत्म कर देती है. इसका जवाब मैं लेती हूँ, आप सोच लीजिए. या हमारे साथ मौजूद है. या क्या सवाल करेंगे? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग. पहले दोनों को सलाम. Good morning. और उमैर की मुस्कुराहट देख के तो भाई इनके पीछे बड़ी, इनकी मुस्कुराहट भी जबरदस्त है. मैं आपकी जो गेस्ट फीमेल गेस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं समझ आया, तो रहमा ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात करेगी. मेरी नज़र में देखें, बात ये होती है कि हाउ प्रोफेशनल यू आर. अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको डिसिप्लिन आता है, आपके कमांडिंग आपके पास है कि एबिलिटी, तो आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे. और मैं आपसे कहूँगा, जैसे भी आपने कॉलेज ने बहुत से कहा ना, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अब थिंग्स आर चेंजिंग है. 2026 में आप देखेंगे बहुत सारी फीमेल वेसेस आपको मिलेंगी. और मैं बिलीव मी और नॉट, क्योंकि मेरी भाभी खुद एक बैंक से मुंसलिक है और प्रायोरिटी बैंकिंग की हेड है, वो लेके चल रही है लोगों को, और बड़ा अच्छा लेके चल रही है. अब जो फर्क है ना, वो ये आ रहा है कि अब ये बात हम करना छोड़ देंगे. लोग फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते. वी आर एक्सेप्टिंग द फीमेल. कहीं जगहों की सीईओ भी हैं और बहुत सारी बॉसेस भी हैं. हमारी वजीर आला है मरियम नवाज साहिबा, वो पूरे सूबे को लेकर चल रही हैं. कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है. मेरा बट एट द सेम टाइम या वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. हमें अभी बहुत लंबा सफर करना है. अगर हम वेस्ट की तरफ देखें ना, वो बहुत आगे हैं इस चीज़ के अंदर. लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया. आपका पॉइंट आ गया. या थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगी कि लास्ट कॉमेंट जो है ना, वो हम आपसे ले लें. आप क्योंकि लेट आए हैं, इसलिए कम आपको वक्त मिला. मैं आपको पहले ही बता देती हूं. मेरा कसूर है. आपका कसूर है. बताइए फिर क्या करना चाहिए, किस तरह से इस चीज़ को हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. एंड देन द एक्सेप्टेंस, आई होप कि आप एक्सेप्टेंस जनरली बहुत ज़्यादा है. इदारों ने बहुत काम किया है, हुकूमती सतह पे काम हुआ है, पॉलिसी लेवल पे काम हुआ है, और ख़वातीन लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी. जहाँ नहीं थी वहाँ प्रमोट की गई हैं, एस्केलेट की गई हैं, जो कि मर्दों को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मर्दों के लिए एडवांटेज रहा. जो मर्द अभी भी लिफ्टों में ये कह रहे हैं कि बहुत पकाती हैं, मैं फेस नहीं कर सकता, दिमाग ख़राब हो जाता है, आई थिंक उनके लिए ये अवेयरनेस का अहम मौका है. बड़े तमीज़ वाले अल्फाज इस्तेमाल किए. मैंने इससे ज़्यादा भी सुने हुए ख़वातीन. जी, उनको ज़रूर काम करना चाहिए. आई थिंक इसी से हम अपनी पर्सनैलिटी, काम सिर्फ काम तो नहीं होता ना, काम ने आपको आगे बढ़ाना होता है. अगर आपको ऐसी बॉस मिल जाए जो कि आपको आगे बढ़ा रही हो, तो ये जो चीज़ तपा रही होती है वो बहुत आगे बढ़ा रही होती है. तो फिर काम पे करें. अगर आपको ऑब्जेक्शन भी है, काम पे करें. पर्सनली उनके कपड़ों पे, उनकी पर्सनालिटी पे जो टारगेट करने लग जाते हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है. एब्सोल्युटली. इंसान जब समझ नहीं आता कि और किस चीज़ पे गिराए, जब कॉम्पिटेंस नज़र आ रही है, जब काम हो रहा है, तो ये बड़ा आसान हरबा होता है. तो हम सब इस पे रिजॉर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और केयरफुल होना चाहिए. ख़वातीन बॉसेस को भी अपने लुक्स को और अपनी प्रेजेंस को केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए. कहीं ना कहीं वो भी रजिस्टर होती है, और जो मर्द उसी निगाह से फिर देखते हैं, इट हर्ट्स देम इन देयर करियर. आई नो दे आर नॉट कॉजिंग इट, बट इट हर्ट्स देम. रोमा, इन द एंड आप कुछ कहना चाहेंगी? एंड मेरे पॉइंट को भी ऐड कर दीजिए. क्या सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है लीडरशिप में आके? आई नो कि मेरे अराउंड जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप चेंज हो गई हैं रिसेंटली, लेकिन आई होप नॉट. आई विल गो बैक जो मेरा पहला अर्लियर पॉइंट था. आई स्टिल थिंक कि आई नो कि कुछ ट्रेट्स हैं फीमेल्स के अंदर दैट मेक देम बेटर लीडर्स परहैप्स, लेकिन आप इस तरह वो ब्लैंक स्लेट वो नहीं कर सकते कि सब एक जैसे ही होंगे. आपके अंदर एक कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एंड आई थिंक हमारे अभी भी एजुकेशन में, और आप खुद ये काम करते हैं एजुकेशन में, अर्ली ऑन ये चीज़ें सिखाने की बहुत ज़रूरत है. इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, आपको कैसे अपना पेशेंस डेवलप करना है, एंड कंटिन्यूस लर्निंग. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ लीडरशिप पे भी आ जाएं, आप अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, विच आई थिंक स्पेशली फॉर मी बीइंग अ यंग पर्सन हु इज़ लीडिंग अ लार्ज टीम, ये मैंने डेफिनेटली ट्राई किया है. एंड आई फोकस्ड, एंड सबको करना चाहिए, मेल और फीमेल, कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल. मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन टू ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है. आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है, आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, आपकी एजुकेशन क्या है, एंड देन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो डिज़र्व ही नहीं करता, चाहे वो बंदा है या बंदी है,
مرد ہے یا خاتون ہے ان کو آپ بنا دیں گے باس تو وہ اس نے تو ناکام ہی ہو جانا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. بٹ اگین مجھے ابھی بھی انتظار ہے کہ میری کوئی فیمیل باس آئے, دین آئی ول بی ایبل ٹو ٹیل مور اباؤٹ جا کر کبھی فیمیل باس یو نیور نو. تھینک یو سو مچ روما ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے. آپ کو تھوڑا کم وقت ملا ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم آپ کو بلاتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جناب ہمارے ساتھ یہ موجود تھے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جناب جب بھی کوئی خاتون باس آ رہی ہے یا مرد باس آ رہا ہے نا, تو جو پری ڈٹرمنٹ پرسیپشنز ہم نے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کو چھوڑ کر خود سے ایکسپیرینس کیجئے کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے, اور پھر اپنا اوپینین بلڈ کیجئے. کسی اور نے آپ کو کہہ دیا اور اس کے مطابق آپ چلنا, اور سپورٹ کرنا چاہیے خواتین کو آگے آنے کا. جب موقع مل رہا ہے تو میرے خیال سے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے.